Very good morning, students. Last day before yesterday, we have started accounting equation chapter. I have given you the knowledge of assets, liabilities and capital with their examples. And we are dealing with the equation assets equal to liabilities plus capital. We have also undergone the treatment of certain expenses or losses in which either cash or stock is less deducted and the capital and these expenses or losses are also deducted from capital. Similarly, income or gain, if there will be, then cash will be added and capital will also be made plus by such amount. Okay, we have practiced example number 2. I have given you to complete example number 4, 6 and 7. Most of the students have not submitted their task, so they must submit by today by 11 a.m. Okay, and today we are advancing towards one more problem, means a bit advanced. Okay, one question from accounting. You have to prepare, the question is given, you have to prepare the accounting equation from the following. Okay, you have to prepare the accounting equation from the following. First transaction is given, started business with cash रुपीज़ 2 लाख, नो डाउट. ठीक है, कैश में 2 लाख लिखेंगे और कैपिटल में भी 2 लाख कर देंगे. देन वी हैव परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ इतना एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1,50,000. तो इस केस में हम लोग कैश में 60,000 लेस करेंगे. ओके, क्रेडिटर में 1,50,000 दिखाएंगे और स्टॉक में हम दोनों को मिला के 2,10,000 रुपये लिख देंगे. ओके, now here comes the third number, sold goods for cash costing rupees itna at a profit of 20%. Sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20%, and on credit costing rupees 72,000 at a profit of 25%. now ये स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस में मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन पहले पढ़िए, ताकि कहीं पर कोई वर्किंग अगर बनाना हो हम लोगों को रफ, तो हम लोग बना सकें. ओके, सो सबसे पहले वर्किंग नोट लिखेंगे हम कॉपी में. सबसे पहले हम कॉपी में लिखेंगे वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में हम ट्रांजैक्शन नंबर सी का वर्किंग पहले बनाएंगे. इट इज गिवन सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज इतना. तो सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 40,000. प्रॉफिट कितना है इसमें दिया हुआ, 20% प्रॉफिट ऑफ 40,000. 40,000 का 20% हो जाएगा 8,000. ओके, और सेल प्राइस, कैश सेल प्राइस रुपीज 40,000 प्लस रुपीज 8,000, that will be 48,000 students. Similarly, CP of goods sold on credit, because goods को जो हम बेचे उसका कॉस्ट दिया हुआ है ना, इसीलिए कॉस्ट दिया हुआ है 72,000, and this we have sold at a profit of 25%, rupees 18,000. Okay students, rupees 18,000. So credit sale price 72,000 plus 18,000, and this will become 90,000. Okay students, now next question दिया हुआ है डी नंबर. पेड रेंट रुपीज 5,000, we know the treatment. Goods costing rupees 75,000, sold at a profit of 33 1/3%. Again the working comes. Cost is given rupees 75,000. Profit given 33 1/3% of 75,000. It will be 100 by 3 into 100 into 75,000.
25,000। ओके, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 75,000 प्लस रुपीज़ 25,000, it will become 1 lakh. Okay students, 1 lakh. Now कैश रिसीव्ड कितना बोल रहा है? हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो हाफ इंटू 1 लाख दैट इज 50,000। तो क्रेडिट सेल कितना हो गया? क्रेडिट सेल मतलब हमारा डेटर, क्रेडिट सेल कितना हो गया हमारा? 1 लाख माइनस 50,000, इट विल बिकम 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वर्किंग। ये वर्किंग आपको करना कंपलसरी होता है। इसके बाद आइए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन, सो सेम प्रोसेस रहेगा। हम सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारे पास एसेट्स में क्या क्या है? एक कैश है, और हमने क्वेश्चन में पढ़ा एक स्टॉक है हमारे पास में, और हमने देखा कि हमारे पास डेटर्स हैं। उधार में गुड्स सेल किए ना क्रेडिट में, तो डेटर्स आ गए। हमने परचेज भी किया है क्रेडिट में, इसलिए हमारे क्रेडिटर्स हो गए प्लस कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ coming to the serial number 1, question is given, started business with cash rupees 2 lakh, so we have 2 lakh rupees cash। स्टॉक अभी नहीं है, डेटर्स अभी नहीं है, क्रेडिटर्स भी नहीं है, और कैपिटल हमारा हो गया 2 लाख का। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड नंबर, purchased goods for cash rupees 60,000 and on credit 1,50,000। सो टोटल गुड्स कितने हो गए? टोटल गुड्स कितने हो गए? 60,000 प्लस 1,50,000 दैट इज 2,10,000 के, यानी 2,10,000 रुपये का गुड्स हमारे पास आ गया। गुड्स कितने का हुआ? स्टॉक हो गया 2,10,000 का। हमने कैश पेमेंट किया 60,000, ओके, और 1,50,000 का हमने क्रेडिट लिया, यानी मेरा क्रेडिटर्स हो गया 1,50,000, रेस्ट जीरो स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द न्यू इक्वेशन, हमारा न्यू इक्वेशन क्या आया? 1,40,000 कैश, 2,10,000 का हमारा स्टॉक, डेटर्स ज़ीरो है, 1,50,000 हमारे क्रेडिटर्स, और 2 लाख का हमारा कैपिटल। टोटल मिला लीजिए 3,50,000, यहाँ भी हम देखेंगे 3,50,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द थर्ड नंबर, सी नंबर ट्रांजेक्शन इज गिवन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये तो हम लोग वर्किंग से, जो हम लोग वर्किंग नोट बनाए उससे कर लेते हैं। वर्किंग नोट में देखिए स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 और 18,000 है कि नहीं? सो टोटल प्रॉफिट 8,000 प्लस 18,000, ये हो गया 26,000 का टोटल प्रॉफिट हमारा। तो हम प्रॉफिट दिखाएंगे 26,000 कैपिटल में बढ़ा देंगे। ओके, हमने स्टॉक कितने का बेचा? 40,000 का स्टॉक बेचा और 75 का। तो स्टॉक हमने कितने का बेचा स्टूडेंट्स? 40,000 प्लस 75,000 का स्टॉक्स बेचा, यानी स्टॉक हमने बेचा है टोटल 1,15,000 का। कितने का स्टॉक बेचा? 1,15,000 का हमने स्टॉक बेचा। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने स्टॉक बेचा है
72,000 और 40,000 का, 40,000 और 72,000, दैट इज 1,12,000. ओके स्टूडेंट्स, 1,12,000 का हमने स्टॉक बेचा. इस स्टॉक को बेचा तो हमारे पास कैश कितना आया, कैश कितना आया, 48,000 आया. और हमने क्रेडिट में कितने में बेचा, 90,000 में बेचा, यानी डेटर्स बढ़ गया मेरा 90,000 का, क्रेडिटर्स 0. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 48,000 प्लस 90,000 1,38,000 हो गया. 1,38,000 का